کہانی کافر نسیم احمد کرل۔ جس دن سیٹل اودی اور ان کی اہلیہ کا اسلام قبول ہونا تھا، مسیت میں اتنے لوگ نماز کے لیے آئے کہ قبائن کی جھونپڑی بھر گئی، لیکن 2-3 قطاریں باہر کھلی فضا میں رہ گئیں۔ اس سے پہلے اتنی بڑی جماعت تو عیدوں پر ہوا کرتی تھی، یا جب کوئی امیر آدمی اپنے فوت شدہ باپ بھائی کو ایصال ثواب کے لیے خاتمی کا برتن لاتا تھا۔ گاؤں مسیت کے امام مولوی امید علی نے بھی اس معاملے کو خوب عام کیا تھا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا تھا کہ یہ موقع عیدوں سے زیادہ بابرکت ہے۔ گاؤں کے لوگ آخر اتنے بے دین نہیں تھے اور پگڑی بانٹنے والا آ گیا تھا۔ اس موقع پر خود مولوی صاحب بھی بڑی شان سے تشریف لائے تھے۔ اس کے سر پر سبز پگڑی تھی، جسم پر صاف ستھرے کپڑے تھے، پاؤں میں ریشم کے نئے جوتے تھے اور ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی جس کے نچلے سرے پر لوہے کا کانٹا تھا، جسے اس نے محراب کے قریب کچے فرش پر اس طرح پھیلا دیا تھا جیسے دین کا جھنڈا پھیل گیا ہو۔ اس دن وہ خطبات کی جو کتاب لائے تھے وہ بھی نئی تھی۔ جب اس نے آیات پڑھی تو وہ سندھی آیات کے اس حصے پر پہنچا جہاں چاروں بزرگ صحابہ کی تعریف کی گئی تھی۔ پہلا دوست صدیق اکبر تھا۔ بہادر اور بہادر صدیق اکبر۔ غار کے ساتھی صدیق اکبر تھے۔ میں اسے کیسے بیان کروں؟ دوسرا دوست عادل عمر تھا۔ کافروں کا قاتل عمر رضی اللہ عنہ تھا۔ مضبوط اور کامل عمر۔ میں اسے کیسے بیان کروں؟ رسول اللہ کے والد حضرت عثمان تھے۔ قرآن کے مرتب کرنے والے عثمان تھے۔ سخاوت کے مالک عثمان تھے۔ میں اسے کیسے بیان کروں؟ دین و ایمان کو زندہ کر حیدر۔ نبی کی لازوال قربانی حیدر۔ خدا ہر ذی روح کو سلامت رکھے حیدر۔ میں آپ کو کیسے بیان کروں؟ ایسی سریلی آیات سن کر جماعت کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں اور سب کے دل ترسنے لگے کہ خطبہ جاری رہے۔ فرضی انداز میں بھی مولوی صاحب نے چھوٹی آیات کی بجائے سورت الرحمن سے آغاز کیا، جس میں فب الی ربکما تکزبان کی تلاوت نے نماز میں مزید لذت پیدا کر دی۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے ایک مختصر تقریر کی اور گاؤں کے لوگوں کو ایسے مبارک موقع پر شرکت کرنے پر مبارکباد دی۔ پھر اس نے 5 وقت کے نمازی کو سیتل اور اس کی بیوی کو بلانے کے لیے بھیجا، جو نہانے کے بعد نئے کپڑوں میں کمرے میں بیٹھ گئے۔ جب سیتل بیٹھی تو مولوی صاحب نے سیتل سے اونچی آواز میں پوچھا، بابا، کیا آپ اور مائی ٹلی محمدی مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی مولوی صاحب۔ اپنی مرضی سے زبردستی؟ اپنی مرضی سے جناب پی۔ تم بھی مائی ٹلی؟ جی جناب پی، ایک کونے میں بیٹھی مائی ٹلی نے جواب دیا۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے جماعت سے پوچھا، بھائی کیا تم سن رہے ہو؟ ہاں، ہم سن رہے ہیں، اکثر جماعت نے جواب دیا۔ مولوی صاحب نے چھت کی طرف انگلی اٹھائی اور بلند آواز میں 3 بار کہا، اے اللہ تو گواہ ہے، 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 اے اللہ تو گواہ ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے پھر سیتل سے پوچھا، کیا تم روزے بھی رکھو گے اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھو گے؟ جی جناب، میں روزہ رکھوں گا اور نماز پڑھوں گا۔ تم بھی سونا پہنو گے شریعت کی حدود میں؟ میں کروں گا، سیتل نے خلوص سے کہا۔ اچانک مولوی صاحب کی نظر سیتل کے کانوں پر پڑی جس میں اس نے سونے کی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ مولوی صاحب نے فوراً اس سے کہا، وہ سونے کی بالیاں اتار کر اپنی ماں کو دے دو، اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ سیتل نے جلدی سے بالیاں اتار کر اپنی ماں کو دے دیں، جنہوں نے لے کر رائی کے گٹھے میں باندھ دیا۔ مولوی صاحب نے پہلا سوال کیا، تم جوا نہیں کھیلتے؟ تم منشیات نہیں پیتے؟ نہیں جناب تی۔ تم بھی مسلمانوں کی طرح ختنہ کرواتے ہو؟ جی جناب پی، سیتل نے خلوص سے کہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولوی صاحب نے اسے انگوٹھا دیا۔ اس نے مزید کوئی سوال کرنا بھی ضروری نہ سمجھا اور اس سے کہا، آؤ اور میرے قریب بیٹھو۔ سیتل دوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا، لا الہی کہو۔ سیتل اچھی طرح نہ کہہ سکی اور بولی، لیلا۔ نہیں، لا الہ کہوں۔ مولوی نے لفظ بے لفظ کہا جیسے وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہو۔
ला इलाह, सेतल ने कहा। इस बार सही कहा। औ लेल, मौलवी साहिब आगे बढ़े। ALLL एम हाम डार। इम्हाम डार। अब पूरा कलिमा इसी तरह पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। जी जनाब। कहो। ला इला अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला इला इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह, सेतल ने खूब सुनाया। एक मुल्हद को अल्लाह और उसके रसूल को मानते देखकर तमाम मजमा खुश हो गया और मौलवी साहिब को मुबारकबाद दी और फिर सेतल को मुबारकबाद दी। एक मोमिन ने तकबीर कही जिसका जमात ने इस कदर बुलंद आवाज से जवाब दिया कि चंद घंटों तक मस्जिद की छत और दीवारें गूंजती रहीं, हरूफ को दोहराते रहे। इसके बाद माई तिली ने इसी तरह कलिमा पढ़ा। उन्होंने मुबारकबाद भी वसूल की। फिर मौलवी साहिब सितल की तरफ मुतवज्जी हुए और कहने लगे, आज से तुम्हारा इस्लामी नाम अब्दुल्ला होगा। जी जनाब। फिर मौलवी साहब ताली की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, और माँ, आपका नाम फातिमा है। जी जनाब। जमात के कुछ लोग खड़े होने लगे लेकिन मौलवी साहिब ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और कहा, ठहरू, उनका निकाह पढ़ना अभी बाकी है। ये सुनकर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। मौलवी साहब ने उन दोनों से इजाज़त ली और अमानत बल्ला का वर्द करने लगे। इस दौरान गांव के बाहर खड़ी गीतों के बाग में हंगामा मच गया। औरतें अलग अलग ग्रुप बनाकर अपनी अपनी जबान में गुप्पे लगा रही थीं, जबकि मर्द फिर से अपने मक्खी खाने वाले के बिस्तर के गर्द गर्मा गर्म बहस में मसरूफ थे। शहद की मक्खी खाने वाला भी कभी कभार खेत में तनकों को मारता है, उसकी ख्वाहिश करता है। उसने पहले सुना था कि इसने सिटल से बहुत वादे किए थे, गीता का आशीर्वाद बढ़ाया था और आखिरकार पूरी पंचायत के सामने अपनी भगवा रंग की पुटी उसके पैरों पर रख दी थी। लेकिन सीटल ने उसे खुलकर जवाब दिया था और कहा था, मक्खी खाने वाले, तुम कुछ भी करो, मैं अपना मजहब जरूर बदलूंगा। लेकिन तुम अपना मजहब क्यों बदल रहे हो? मेरी मर्जी। फिर भी वहां मिस सिटल ने हंसते हुए कहा था, मुझे अपना मजहब पसंद नहीं है। अरे घोड़े, तुझे अपना मजहब पसंद क्यों नहीं? ठीक है प्यारी, बताओ हम कौन हैं? हम हिंदू हैं। वैसे तो हिंदू लाशों को चित्ता पर रखते हैं, हम उन्हें क्यों दफनाएं? ये हमारी रिवायत है। अच्छा, हम हलाल खाना क्यों खाते हैं? ये भी हमारी रिवायत है, हमारे आबाओ इजदाद से। लेकिन ये मुसलमानों की रवायात हैं। वो उनके भी हैं और हमारे भी। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि हम हिंदू हैं? या क्या? आधा हिंदू, आधा मुसलमान, एक भीड़, एक बकरी, एक बकरी, एक बकरी। मक्की फगन मिल इस सवाल से हैरान रह गए, लेकिन उसने मौजू बदल दिया और कहा, अगर हम शादीशुदा भी हैं तो हम अपना मजहब क्यों बदले? मुझे मुस्लिम मजहब पसंद है। क्या हमारा मजहब झूठा है? हाँ, ये झूठ है, सेटल ने हिम्मत से कहा। इस पर पंचायत के बुजुर्ग बरहम हो गए। मोती और दो तीन दूसरे उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मक्की ने उनके हाथ बांधकर उन्हें रोक दिया और कहा, मारने से कोई फायदा नहीं होगा, इसे मुसलमानों की तरफ से तावीज़ दिया गया है। ये मामला उनके दिलों में उसी तरह जज्ब हो गया जिस तरह उनके तेज पंजे जमीन में जज्ब हो गए थे। मौलवी तावीज़ लिखने में मशहूर था और वो दूर दूर से इससे तावीज़ मांगने जाते। ओडस खड़े होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और जबरदस्ती इस गुस्से को दाईं तरफ से हटाने लगे। मक्की सबको खामोश देखकर सितल की तरफ मुतवज्जे हुआ और इससे पूछा, तुम क्यों मुसलमान मजहब की पैरवी करना चाहते हो? मुसलमान भाइयों की तरह इकट्ठे खाते हैं। हम हिंदुस्तानियों में से कुछ ऊड हैं, कुछ अछूत हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ कुत्तिया हैं। मुकी कोई जवाब ना समझ सका। ये वही बात थी कि ब्राह्मण अछूत और ऊड को अपने करीब नहीं आने देते और वो एक ही थाली में खाने से दूर रहते हैं। मुसलमान ऐसे काम नहीं करते। इस पर मक्की ने एक मुख्तलिफ मक्का मारा। सिटल, अगर तुम मसलू बन गई तो तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। नहीं, 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 हम तुम्हें अपने पास नहीं आने देंगे, भेड़िए के पास भी नहीं। मक्की ने सिटल को डांटा। भेड़िए की बीवी सिटल की अपनी बहन थी।
मत आना, मैं मुसलमान भाइयों के साथ बैठूंगा, शराब भी पीऊंगा। अब तक मक्की सर्द लहजे में बोल रहा था। इसे यकीन था कि सेटल किसी न किसी तरह इसके जाल में फंस जाएगा, लेकिन उसने उसकी कोई बात ना सुनी और उसने अपनी बहन को जिंदा ही मार डाला। इसलिए माकी को गुस्सा आ गया। वो थोड़ा सा गर्म हुआ और बोला, सेटल को याद रखना, अगर तुम 5 गधे लेकर घोड़ों के साथ रख दो तब भी वो गधे ही रहेंगे, घोड़े नहीं। पंचायत बनने के बाद मक्की ने किसान से कहा था कि वो सेटल को मास्क पहनाकर समझाता रहे, लेकिन सेटल ने किसान और उसकी बहन की मिन्नत समाजित के बाद भी बात ना मानी और मौलवी उम्मीद अली की तरफ से दिए गए मौका के मुताबिक जमा के दिन वो घर वाले को लेकर सीधा मस्जिद में गया और कलिमा पढ़ा। उसके पीछे बदमियाशों का एक ग्रुप था। ख्वातीन ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए और अपनी अपनी जबान में गपशिप कर रहे थे, जबकि मर्द अपनी मक्की की झोंपड़ी के उर्द गर्द बड़ी बहस में थे। मक्की कभी कभार कांटेदार झाड़ी में दोनों हाथों से काटियां मारता, उसकी तमन्ना करता। मुसलमान होने के बाद सेटल फौरन बदल गई। पहले कोई 2-3 दिन तक दाढ़ी नहीं मनवाता था, इसलिए आराम नहीं होता था, लेकिन फिर उसने अपनी दाढ़ी को बाकायदगी से छोड़ दिया। जो दिन बदन बढ़ती गई, इससे उसका चेहरा चमकता गया। वो मौलवी के सामने नमाज के लिए आता, लेकिन अगर देर हो जाती, तब भी जब मौलवी अजान देता और मस्जिद से नीचे उतरता तो उसका एक पांव मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक देता। वो सिलाई, नान तह करने और चिटाई भरने में भी तमाम जमात से आगे था। वो कुरान पढ़ने का इतना शौकीन था कि 1.5 माह में पूरा बाब खत्म करके पढ़ना शुरू कर देता था। अपने घर में उस्र और सुमनी की आयात बुलंद आवाज से पढ़ते। उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उसे ऐसी हिदायत दी थी कि वो सारी दुनिया को देगा। मौलवी साहिब को इससे पहले कभी किसी काफिर को इस्लाम कबूल करने की सआदत नसीब नहीं हुई थी, इसलिए वो इसे अपनी आखिरत की निशानी समझते थे और आते ही उसकी तारीफ करते थे। अब्बा जान, हमारा ये अब्दुल्ला अगर किसी ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंचता तो वो मुझे क्यों ना देखे। बाज़ औक़ात मौलवी साहिब बाज़ नमाजियों को खुदा, रसूल और आखिरत का खौफ दिलाते और उनकी मिसाल देते और उनसे कहते, नमाज पढ़ो, दुआ करो और दूर रहो, वरना क़ियामत के दिन ये हुआ तुम्हें मुश्तबा कर देगी। अब्दुल्ला का नमाज, सलवात और दरूद का जोश देखकर मौलवी साहिब इसे तसल्ली देते और कहते, अब्दुल्ला, डरो नहीं, रब तुम्हारे तमाम गुनाह मुआफ़ कर देगा। बुरे से अच्छा कहना बेहतर है। अब्दुल्ला फिर आजिज़ी के साथ मौलवी साहिब से दरख्वास्त करता कि वो अल्लाह के प्यारे बंदों में से हैं, इसलिए अल्लाह से उनके गुनाहों की मुआफ़ी, अज़ाब क़ब्र को आसान करने और रोज़ हशर नसीब होने की दुआ करें। मौलवी साहब फ़ौरन हाथ उठाकर दुआ करते और पहली सलब शरीफ और 2-3 आयात पढ़कर निहायत आजिज़ी के साथ ये दुआ करते, हम नाफरमानों की फरमाइश सुन लो, मुस्तफ़ा की खातिर। हाथ उठाना शर्म की बात है, मगर डरो नहीं है मेरे। सवाल सुनो सिद्दीक अकबर के वास्ते, पाक दिल की खातिर। मजबूत है तेरी हुकूमत, कसूरवार हम हैं। हमें फारूक आज़म के वास्ते फ़ज़ल अता फरमा जो मुनाफिक न हो। रूह की जंग में हमें फ़तह अता फरमा। हमारी मुश्किलात को हल फरमा, हमारी मुश्किलात के लिए। इस दौरान अब्दुल्ला हर बंद के बाद आमीन कहता और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी सुनहरी रोशनी में जज्ब हो जाते। एक दिन ज़हर की नमाज से कुछ देर पहले वाला का बीटा बाबा भागता हुआ उसके पास आया और उससे कहा कि अपनी माँ को उसकी बीमारी के दौरान याद करो। अब्दुल्ला ने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन मक्की फिगन माल के साथ किए गए फैसले के मुताबिक वो नहीं गया था। अपनी बहन की बीमारी का सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, लेकिन उसने अपने चचा से कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मक्की नाराज हो जाएगा, आप इसे गाड़ी में ले जा सकते हैं। चचा का ये उज़्र सुनकर चचा ने उससे कहा, मामा आप फिक्र न करें, बाबी ने मक्की के पांव पर पट्टी लगाकर आपके लिए कुछ देर के लिए रुखसत ली है। ये रुखसत मिलने के बाद अब्दुल्ला को कोई और एतराज नहीं था। वो अपने चचा के साथ वहां गया। ज़हर की नमाज के वक्त जब मौलवी साहिब ने अब्दुल्ला को ना देखा तो हैरान हुए और जमात से पूछा। जमात के एक रुकन जिसने अब्दुल्ला को अपने चचा के साथ दूर से जाते देखा था, मौलवी साहिब को ये बात बताई।
मौलवी साहब परेशान हो गए और बोले, वो जाना नहीं चाहता था। जितनी देर वो काफिरों की सोहबत में रहेगा इतना ही उसका ईमान कमजोर होता जाएगा। कोई जाकर इसे ले आए। मौलवी साहब का हुक्म सुनकर फतह नारीजो उठा और जल्दी से अपना सामान उठाए ओड की झोंपड़ी में पहुंचा। वहीं झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर पक्कारा, अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला। मक्खी खाने वाले की झोंपड़ी के पास ही झोंपड़ी थी। इस वक्त वो बाहर से आए मेहमानों के साथ खेल रहा था। अजान सुनकर वो उठा और झोंपड़ी से बाहर निकला और फतह से पूछा, क्या ये फतह है? हमारा अब्दुल्ला तुम्हारे पास आया है, इसे मौलवी कहते हैं। शहद की मक्खी इससे थोड़ी नाराज हुई। अब्दुल्ला, जो उनकी हड्डियों, खून और पत्तों का था और जो उनके बतन से पैदा हुआ था, फातिहीन की मलकियत बन गया था, वो अपनी बीमार बहन को देखने आया था कि एक आदमी उसके पीछे भागा। शहद की मक्खी ने तंजिया अंदाज में पूछा, क्या अब्दुल्ला तुम्हारा बाप है? हाँ, हमारे वालिद। तुम इसके वारिस हो? हाँ, वो हमारा मुसलमान भाई है, हम इसके वारिस हैं। इसी असना में अब्दुल्ला को भी अजान के बारे में बताया गया और वो अपनी बहन के पंजरे से निकलकर उनके पास खड़ा हो गया। शहद की मक्खी ने फतह से पूछा, ठीक है बाप, मुझे एक बात बताओ, अगर ये आदमी मर जाए तो क्या तुम इसमें से जुई नहीं निकालोगे? हम जुई क्यों निकालेंगे? तुम, एक मुसलमान, इससे शादी करोगे। अगर मालिकिन राजी हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। क्या ये आफत नहीं होगी? तुम मुसलमान से क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला मक्की को सवाल और जवाब में मुर्दा देखकर हंसने लगा। मक्की ने उसे अपने आप पर हंसते हुए देखकर दिमाग को यूं झंझोड़ दिया जैसे वो किसी को मारने के खेल में देर तक डंडा मार कर मतलूबा दाव हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसने पूछा, ठीक है फता, अगर वो नौजवान मर जाए तो क्या तुम अपनी तरफ से इससे शादी करोगे? मक्की का सवाल सुनकर फतह का चेहरा सुर्ख हो गया, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। एक मतलबी बूढ़े ने उसकी तौहीन की थी। हालांकि बूढ़ा जानता था कि देहात में कोई भी अपनी जात से बाहर सींग नहीं देता। मर्द औरतों को देते हैं और औरतें मर्दों को देती हैं और औरतें मर्दों को देती हैं। फतह ने गुस्से से मक्की को डांटा और कहा, मक्की, अपनी जबान रखो, अब एक लफ्ज भी मत बोलू वरना। लेकिन मक्की गुस्से में आने के बजाय मुस्कुराता रहा और फतह से कहा, इस कानून में लिखा है कि तुम लो और दो और कोई नहीं देता। तुम्हारे मजहब में तमाम मुसलमान भाई भाई हैं और कोई फर्क नहीं है। ये हमारा रिवाज है, हमारे आबाओ इजदाद से। फतह ने गुस्से से जवाब दिया। शहद की मक्खी अपना मतलूबा दाव संभाल कर मुस्कुरा दी। अब्दुल्ला के चेहरे से खून निकल गया, इसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले जिससे उसके गालों को भीगने लगा। आंसू बहते और उसकी आंखों की बंदिश को तोड़कर उसके गालों पर बह गए। उसने शहद की मक्खी की चोंच काट ली और मसीते जाने के बजाय अपने आबाई घर लौट गया। अगले दिन अब्दुल्ला ने दाढ़ी मनवाई, कानों में सोने की बौलियां पहने, सब्ज पानी से नहाया और ऊद की रस्म के मुताबिक खुद को पाक किया। फिर गांव की मस्जिद में जहर की नमाज के बाद जमात के एक फर्द ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, कुत्ते को गंदुम की रोटी का क्या पता? एक और बोला, जनाब, अगर आप जूतों के 5 जोड़े लेकर गधे को उबूर करेंगे तो वो घोड़ा नहीं होगा। आखिर में मौलवी उम्मीद अली ने सोने की बौलियां अपने हाथ से एडजस्ट करते हुए कहा, हाँ बाबा, आप सच कहते हैं, काफिर तो काफिर ही होता है।